Hey all, good evening. Today we have an eminent artist, Mr. Ravinder Sharma ji, joining us today. And welcome to Sneha Arts, the Art Talk. As all of you know, that the Art Talk is an initiative by Sneha ji, Dr. Sneha Lata Prasad, who's also an art collector. She's an artist herself and won a lot of awards. Sneha does a lot of activities around, artists, events every year. And today's guest, they don't need any introduction, Mr. Ravinder ji. I've seen his profile. First time I got to see his profile. And more than an artist, the fan following he has, the number of students who've made his photographs, portraits, shows that the number of fan following students he has got. So I would not introduce him a lot based on his work, but I think I am thoroughly surprised by the way the number of students who are following him, who have made portraits of him, and very very proud to tag him for every artwork which they do. So thanks a lot, sir, for joining us on this particular show. It's an honor having you Thank here, you so much. sir. Uh, How was your journey? How was your childhood? Were you around artists? आपके family में कोई art के थे या or you were the first one who ventured into this? Thank you, Ravichi. I'm so grateful for this great opportunity. Being a teacher and artist together is a very different experience because when you play with colors and you see the colors of your students by side, you get a very deeper experience. So I'm fortunate in one thing that art took me to the deeper level of my dear students. I could see them from the deepest of their core. Second thing which I do feel, the spirituality which my family is being blessed with is to some extent related to art. Any art activity, any line drawn on any surface is a prayer, provided one feel, one get into it. Or for almost 45 years, I have been teaching and painting together. And both activities, whenever a good form used to come on my sheet, I used to see the love of my student that they will be inspired by it. So still, whatever I say, whatever I draw, whatever I feel it is for my students because they will represent me even when I will not be there. अपने शिष्यों के लिए टीचर का जो किरदार है वो डिवाइन हो जाता है so that love has been and you are so I'm so grateful you have given me an opportunity to be with them again Superb. और मैं मौलाना रूमी जी का भी फैन हूँ मैं कविताएं भी लिखता हूँ और मैं कई बार महसूस करता हूँ कि कविता और पेंटिंग एक ही गर्भ से निकली हुई हैं एक ही माँ की संतान है एक ही चेतना की आउटकम है एक ही सेंसिटिविटी की आउटकम है और रूमी साहब की कविता जो मैं शेयर करूंगा अपने सुनने वालों से वो कहा करते थे कि आप जिसे प्यार करते हो वो कभी तुम्हारे कर्म में आ जाए आपका प्यार आपके कर्म में जुड़ 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 जाए और इस तरह से कई बहाने हैं झुकना और धरती को चूमना उस समय आप धरती आपको चूम रही होती है जब आप अपने प्यार में अपने कर्म से जुड़ते हैं वर्क इज लव मेड विजिबल ये मैं इस पे अमल भी किया है और इसकी मिठास भी महसूस की है और बचपन में मैं कहना चाहिए मैं एक ऑर्फन की तरह माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 2 year old so whatever I am or hope to be I owe to my angel mother who was not much educated even she brought up me in such a spirited atmosphere. I was a very intelligent student getting national scholarship in science
I left medical line to join College of Art. I didn't pre-medical, even I was getting admission in a college, medical college, but due to the vegetarian status of my family, I was not at ease while operating or sitting in the dissection class. So I joined College of Art. And my science background gave me that, I should say, strength to see in depth. That helped me. Sometimes students want to ask what is the relation between art and science. Science is the way of looking, and art is what you look at. So both helped me. And after my diploma from College of Art, I did masters from university, research on Ram Devtas. And the most beautiful part of my life is my time with my students in the class. I taught aesthetics और जिज्ञासा को देखना और उसके साथ जुड़ना, बच्चों की जो जिज्ञासाएं होती हैं ना, बहुत बड़ी नियामत है ये। आप अगर किसी की, वो कहते हैं ना, किसी के दर्द को मिटाए किस पे रहमत है इतनी परवरदिगार की। मैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट टीचर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने शिष्य की जिज्ञासा को पहचान के उसके साथ जुड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर वो नॉलेज पोर हो जाता है जो आप में है भी नहीं। केवल आपके विद्यार्थी की जिज्ञासा आपको एम्पावर कर देती है टू सी द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट लुक, एंड इट इज पॉसिबल। मैं कई बार डेमोन्स्ट्रेशन देने जाया करता हूँ कई जगह, टीचर्स के साथ भी। मुझे कुछ जैसे सेंटर स्कूल के टीचर्स हैं, यूटी के टीचर्स हैं, कई बार मौके मिलते हैं उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन देना। तो जब शीट सामने होती है और मटेरियल पड़ा होता है, तो मुझे कई बार टीचर्स पूछते हैं, सर when you start painting, do you have some idea in mind? What is the beginning? What gives you that beginning? मैं उनको बताया that the most important are the appreciable looks around me. मैं जिस वातावरण में हूँ, अगर वहां कुछ लोग हैं तो उनकी आंखों से टपकने वाला प्यार सबसे पहले ताकत है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि एक आदमी ढूंढ लूं जिसकी आंखों में प्यार है, जो सचमुच इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखना चाहता है, और मैं बार बार उसको देखूंगा क्योंकि दैट विल बी माय स्ट्रेंथ। सो मैंने उनको कहा कि जब आप प्रकृति में हैं, nobody is around you, even the nature looks at you, the bird singing, the flow of a brook around you takes you along. So I told them to melt into the love and flow into the will of him. उसके प्यार में पिघल जाना और उसकी विल में बह जाना। जब ये दो हो जाते हैं तो फिर कला नेचुरल हो जाती है, टीचिंग नेचुरल हो जाती है। आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो विजुअल है, वर्बल है, इट बिकम्स रिलेवेंट। लेकिन जब तक वो आप मेल्ट नहीं होते, यू आर ब्रिटल इनसाइड। मेल्ट होने के लिए यू नीड एन इंटरनल इमोशनल स्टेट। सो वो बहुत जरूरी है। वो उसके बगैर मैंने देखा कला, हसन नईम एक पोइट हुए हैं, आज हमारे यहाँ चंडीगढ़ के रोज गार्डन में एक गैलरी है जो उसके अंडरपास में लगी हुई है, वहाँ दिल्ली के एक आर्टिस्ट का एग्जीबिशन है। सो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। 1962 में एक फिल्म बनी, ये हरियाली और रास्ता, मैं उन्हें उनके बारे में बता रहा था। हसरत जयपुरी साहब ने एक गीत लिखा, मैं समझता हूँ कलाकार के लिए उससे बेहतर उन्होंने संदेश नहीं किसी ने दिया। उन्होंने लिखा, ये हरियाली और ये रास्ता, इन राहों से तेरा मेरा जीवन भर का वास्ता। कला एक
रास्ता है जो हरियाली में से होकर निकलता है। जहां से भी निकल जाता है हरियाली ऑटोमेटिकली वहां पैदा हो जाती है, कोई मंजिल नहीं है। Okay, so that sort of thing is there. Yes. So आप अभी you're the other side of the bench, but as a student आपको ऐसे ही mentors, आप जैसे teachers मिले थे कॉलेज में, या you were you were very naughty Sir, with respect to your studies and thank you so much. It's a great question. मैं अपने टीचर का बहुत आभारी हूँ। मुझे सचमुच स्कूल लेवल से ही ऐसे टीचर मिले। स्कूल में मेरे एक टीचर महेंद्र कंवर हुआ करते थे। मैं जिनको ड्राइंग करते देखता था तो लगता था कि इससे बेहतर कुछ नहीं। कॉलेज में भी मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। प्रोफेसर गुप्ता, इंद्रजीत गुप्ता, मैडम रस्तोगी मेरे हिस्ट्री के टीचर थे, और मैं उनके, कहना चाहिए, सांचे में ढलने की अभी तक भी कोशिश कर रहा हूँ। ढल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो कोशिश ही मेरी अचीवमेंट है। so आपने कब डिसाइड किया कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा? साइंस बैकग्राउंड में आप गए थे, बट आर्टिस्ट ये कब टर्निंग पॉइंट आया था? यस सर, ऐसा है, मैं आपको बताया कि जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया तो जो मेरे टीचर थे, आर्ट टीचर, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस था। उनका अपना करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका चलना फिरना, उनकी मस्ती, एक छोटा बच्चा गांव का उनको शायद देखते देखते उनकी तरह होने की सोचता था। मैं जब 9th में हुआ तो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और मुझे ऑयल कलर्स गांव में ला के दिए कि इस दीवार पे आपने एक पेंटिंग बनानी है, मैं आपको पेंटिंग भी दे रहा हूँ। वो पेंटिंग किसी वेस्टर्न मास्टर की थी। मैं 30% तक उसको 9th में कॉपी कर पाया, लेकिन उस पेंटिंग की वजह से पूरे स्कूल के टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और वो एप्रिसिएशन अभी तक भी मेरे लिए, मुझे लगता, काफी है। मैं अभी तक भी करता हूँ तो वो, सो टीचर्स का ये एप्रिसिएशन, ये कहना चाहिए आशीर्वाद अभी तक भी है। सो कॉलेज में आपके टीचर्स के अलावा आपके क्लोज दोस्त जो अभी भी कनेक्टेड हैं, आप लोग का माना था एज ए ग्रुप, एज फ्रेंड्स, दैट हाँ कुछ कर दिखाएंगे? सर, ऐसा है, जो कॉलेज में टीचर्स, और क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे कॉलेज में सभी आर्टिस्ट थे, सभी अपने ढंग से पेंटिंग करते थे, और हम एक दूसरे की एप्रिसिएशन भी करते थे एक दूसरे से। सो मैं, मेरे कॉलेज में काफी अच्छे टीचर्स थे, अच्छे आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा संग जो मुझे मिला वो ये है कि एप्रिसिएशन एक ऐसा चिंतन बने हमारी। मैं भी किसी की एप्रिसिएशन करता हूँ, चापलूसी नहीं। मोस्टली मैं देखा है एप्रिसिएशन इसलिए आदमी की अपना एसेंस खो बैठती है कि उसमें चापलूस से जुड़ जाती है। लेकिन हमारे कॉलेज में हम जितने भी कोलीग थे, एक दूसरे को गाइड करते थे। अगर लगता था किसी के काम में उसको कोई सजेशन भी है तो कई बार इनडायरेक्टली वो भी देने में संकोच नहीं करते थे। और ये मेरा, और मेरे जो मित्र हैं आउट ऑफ द वे, जो आर्टिस्ट नहीं भी हैं, जो बाहर समाज में हैं, मैं उनकी, कहना चाहिए, आत्मा के आईने में अपने आप को अभी भी देखता हूँ। दे अप्रिशिएट मी लॉट ऑफ। कई बार तो मैं मिलता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। शर्मा जी, कई दिनों से आपसे मिले नहीं, बात नहीं हुई, ऐसे लगता है कि कुछ खोया हुआ है। सो मित्रों की इनायत है ये सर की, इस ना चीज को कुछ मिला हुआ है, कुछ बोलने काबिल हो। सो बहुत सारे दोस्त ज्वाइन हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत सारे फैंस ज्वाइन हो रहे हैं, वो सभी आपको नमस्कार बोल रहे हैं।
before we get into this, we have a short video. People who have not seen Ravinder sir's art, so there is a short video which describes about all the artwork which has done, all the material and different types of paintings he has done. So here is a short video. Very nice. That's awesome art, sir. We are back. बहुत सारे लोग देख रहे हैं and there are a lot of comments coming for you. And we will come back with a question as to what are the materials, what are the different styles of art which you have showcased. Before that, let me just read out some of the compliments and comments for you. Shruti Art Atwalji is loving this particular episode, this conversation. रेनू बाला कश्यप राजपूत जी हेलो सर बोल रही हैं. सुब्रमण्यम सर इज सेइंग नाइस टू हियर रविंदर सर. एंड वी हैव नेहा जी चाबरा हु सेइंग गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड सर. मोहम्मद सलीम जयपुर इज सेइंग नमस्कार सर. विनय शर्मा जी बोल रहे हैं नमस्कार सर. रश्मि गर्ग इज सेइंग गुड इवनिंग सर. शिव कुमार Kankanwadi is saying namaskar sir. Sunita Agarwal is also saying naman sir, namaskar. Neeraj Sharma ji बोल रहे हैं प्रणाम sir. And Remi Kumari ji बोल रहे हैं good evening Ravinder Sharma sir and Ravi Shankar sir. Thank you Remi ji for joining in. Rajan Shripad is saying he is soft spoken and wonderful artist / teacher. Good to hear from you sir. So this is from Rajan Shripad. Aradhana Tandon is saying wonderful person and artist. विनय शर्मा बहुत सुंदर अनुभव. मैं सर के काम से हमेशा प्रेरित होता हूँ.
So Yes, from thank you Vinay so Sharma. much. Mohammed Salim Jaipur is saying amazing work. Remy ji saying nice to see you sir. विनय जी बोल रहे हैं बखूब कलाकार हैं. सो Neeraj ji, yes. नेहा जी चाबरा जी बोल रहे हैं अमेजिंग क्रिएशंस रेस्पेक्टेड सर नाइस टू सी यू. अजय समीर जी ज्वाइन हुए हैं. ही सेइंग हेलो रविंदर जी. रश्मि गर्ग सर वर्ड्स एंड वर्क्स ऑलवेज इंस्पायर अस. It's a good fortune that we get a chance to hear your art journey. सुमिता आयुब बोल रहे हैं वंडरफुल वर्क माय रिगार्ड्स. राजेश शर्मा जी नमस्कार बोल रहे हैं. शगुन अग्रवाल जी वंडरफुल आर्ट वर्क बोल रहे हैं. जो हम लोग ने अभी आर्ट आपकी पेंटिंग्स दिखाए हैं. नक्शदीप सिंह बोल रहे हैं वंडरफुल टू हियर योर स्टोरी रविंद्र शर्मा सर. समीर अजय समीर जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल वर्क अमेजिंग आर्टिस्ट ग्रेट ह्यूमन बीइंग. And Digvijay Singh Rana, great work, sir. So these are the compliments. Thanks audience for watching this, and also if you have any questions for Ravinder sir while we are talking and I ask my set of questions, feel free to ask questions. So sir, when we have seen a lot of paintings and a lot of different forms of paintings and different material that you have used, maybe if you can describe few of them. Why did you choose to have different forms of painting rather than choosing one area? ये सर पहले मैं सभी दोस्तों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्यार बरसाया है. और ये अगर कोई अंकुर इस हृदय से निकलता है तो इस प्यार की बदौलत ही है. मैं सर आई स्टार्टेड माय करियर विद कोलाज पेंटिंग. मैं आई वाज economically not very sound when I joined College of Art. So I used to roam in the market and collect the pieces of colored magazines lying here and there. And from those pieces, I used to create collage painting. And it became my muse, my favorite medium. My about 10 paintings are in the collection of different museums. My first painting that was selected for National Exhibition of Lalitkala Academy, that was also in collage. And that was an X-ray collage. Then I started making collage with different techniques, using based X-ray sheets, using magazines, even using some textures lying in the paper, in the cloth, or any other material. And after college, I got married in Kulu Valley in the year 1988. And it is a Tirthan Valley, one of the most beautiful place in whole India, Tirthan Valley in Kulu. And after seeing the beauty of that place, I fell in love with nature. And from there, I started painting nature. I made about 10 paintings sitting there in the Tirthan Valley, those brooks you have seen. And then I started taking some freedom in using the color. Instead of using brush, I started using cardboard. So most of my paintings, they are created with small piece of cardboard. Instead of a spatula, I use small cardboard and press and just take the texture, which the rocks. So that was the. And then I started digital painting. No, these days during the lockdown period, I created about 200 digital paintings, and on 11th March, I'm putting an exhibition of these paintings. Wow. It would be a pleasure if you all join me on that day. It will be an online exhibition. So these are the Super. So how do you choose the material? जब आप like वो रोड साइड पे आप जब मैगजीन की मटेरियल आप पिकअप करते हैं, so how do you know that okay this will be useful? I mean, by the time do you have an art in mind, or based on the collection you decide on what am I going to build out of this for collage painting? sure. मैं समझता हूँ mind and material, they are the light and warmth of any creative experience. You need material to get mind involved.
मैंने बहुत से फिलोसफर्स को पढ़ा, क्योंकि मैं ढूंढता था उदाहरण की कोई ऐसी उदाहरण ढूंढूं जो मेरे स्टूडेंट्स को काम आए। और मुझे लगता था कि सभी ने ये कहा है कि मटेरियल आदमी की जो अर्ज है उससे खिंचा चला जाता है। मैन हैज द कंट्रोल ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, है ना। सो मैं अभी भी कई बार किसी वर्कशॉप में जाता हूँ या किसी स्टूडेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशन में बैठता हूँ, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जब तक आप नेचुरल नहीं है, लुइस पास्चर ने भी कहा है, एक साइंटिस्ट थे, कि सो लॉन्ग इवन कार्ल जंग, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर। मेरी एक स्टूडेंट ने उसके ऊपर डिसर्टेशन लिखी थी, एंड शी gave me more insight into that. No, she's on a scholarship in some other country. She wrote a very detailed account on Carl Jung. वो कहा करते थे कि so long as man does not peep into his own heart, all material are not relevant to his choice. So uh, the techniques, the manipulation that comes when you look into your own heart. कई बार मैंने देखा बहुत से आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, इट्स नॉट बैड, लेकिन अनलेस दे पीप इनटू देयर ओन हार्ट, बिकॉज यू नीड टू हैव द इंट्यूशन। इंट्यूटिव एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटेलेक्चुअल, तो वो वही इकबाल ने कहा था कि ये तो अकल जो है ना, वो कहते हैं गुजर जा अकल से आ गई, ये तो चिरागे राह है मंजिल नहीं। सो मटेरियल मैनिपुलेशन में अकल से आगे, इंटेलेक्ट से आगे इंट्यूशन, है ना, उस पे तो जब जब कभी इंट्यूशन, और ये सर मैंने देखा अचानक ही कई बार इतनी वोलेटाइल हो जाती है, उस वक्त कुछ भी मटेरियल आपके सामने पड़ा है, यू कैन मोल्ड इट इनटू एन आइडियल थिंग। True. सो मटेरियल से ज्यादा इंट्यूशन और अर्ज, artist can mold any material to the dictate of his urge. That's very important. अगर आपने बहुत जर्नी देखी है एज एन आर्टिस्ट. you've seen your teachers becoming artists. you've seen your colleagues, you have become an artist. आपके स्टूडेंट्स अभी आर्टिस्ट बन रहे हैं. आपके ओपिनियन में what is the definition of a successful artist? When do you believe that, okay, yes, this guy has reached there and he's on track? this is a very great question, sir. Very good question, because कहते हैं अगर आर्टिस्ट एक मोटिवेशनल करेक्टर ना बन पाए, मैं टैगोर की गीतांजलि पढ़ी सर, और मैंने कई जगह लेक्चर दिए उनके गीतांजलि पे। उन्होंने इतनी गहराई तक लिखा है, और वो जब तक आपका हुनर आपके चरित्र में नहीं मुखरित होता, तब तक आप अच्छे आर्टिस्ट भी होने के बावजूद भी मैंने देखा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। मटेरियल मैनिपुलेशन एंड सोल इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों साथ चलती हैं। आप अगर एक स्ट्रोक लगाते हैं और उसमें आनंद आता है आपको, तो वो आनंद जो है वो आपके चरित्र को भी, वो कहते हैं ना, व्हेन आर्टिस्ट मोल्ड्स मटेरियल ही मोल्ड्स हिज ओन कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। कैरेक्टर एंड मटेरियल्स आर देयर मोल्डेड। सो वो, मैं समझता हूँ सही आर्टिस्ट वो ही है जो मस्त हो गया है। मैं एक छोटी सी उदाहरण बता रहा हूँ सर। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहीं एग्जीबिशन लगाया, उस एग्जीबिशन में सभी काम रियलिस्टिक नहीं थे, एब्स्ट्रैक्ट थे, उनका काम रियलिस्टिक था। सो उन्हें लगा कि शायद मैं इनके सांचे में फिटने, लोग मेरे काम को पसंद नहीं करेंगे। सो मुझे कहने लगे, मिस्टर शर्मा, आप अपनी राय दीजिए कि शो में मेरा काम कैसे लग रहा है। उनका काम बहुत सुंदर था, और मैं कई बार उनके काम को देख के आध्यात्मिक हो जाता था। तो मैं उनको लिखने के लिए मैं लिखने लगा, तो एक
कॉपलेट बन गया अपने आप कि जो फूंक फूंक के हर कदम धरती पे झरे, उसकी चाल में मस्ती कहाँ झरे। जब तक आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ चल रहा हूं, उस वक्त तक मस्ती नहीं होती। ये डर है कि दुनिया क्या कहेगी, वो डर है कि वो क्या होगा, इसकी कीमत नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये ऊपर की बात है। सो जब तक कलाकार में वो मस्ती नहीं आई, और वो मस्ती में कई बार वो गुनगुनाता है ना, जब तक एक मैं आपको जॉन मीरो मेरे बड़े फेवरेट स्कल्प्टर हुए, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा लिखा है। ये मेरे सुनने वाले सुने, कहते हैं अगर आपको इफ यू हैव एनी नोशन वेयर यू आर गोइंग, अगर आपको ये मालूम है कि कहाँ जाना, तो आपकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई। यात्रा वो है जिसको मैं आपको पता ही नहीं किस तरफ निकलना है। जॉन मीरो लिखते थे। सो वो कहते थे जब मैं पेंटिंग बनाने लगता हूँ क्या बनेगा आई नेवर न्यू, बट मैं चल पड़ा। सो मैं समझता हूँ कलाकार हैं बहुत से ऐसे हमारे कंट्री में, वी आर फॉर्चुनेट, हमें इंस्पिरेशन मिलती रही है, अभी भी है। लेकिन चरित्र और चित्र दोनों साथ साथ रंगीन होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। Thank you, sir. Thank you for detailed explanation. We have some more comments coming in. So रमी जी बोल रहे हैं वाओ। रूपांजलि जी बोल रहे हैं व्हाट डू बर्ड्स रिप्रेजेंट फॉर यू। आई फील योर आर्ट वर्क इज फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एग्जिस्ट विथ नेचर। तो उनका क्वेश्चन है व्हाट डू बर्ड्स रिप्रेजेंट फॉर यू। that they saying what do birds represent for you. Birds का मतलब birds क्या signify करती है paintings में? कहाँ से निकलते Signify क्या करती है? Signify वर्ड्स? हाँ, birds. पक्षी। आई एम सो सॉरी सर। मैं मेरे मदर सर, शी वाज माय इंस्पिरेशन। आई टोल्ड यू आई वाज 4 years ago she left me. She was the bird lovers. हमारे घर में उनकी वजह से चिड़ियां 24 घंटे आना करती थीं, केवल तो उनके सिर पे बैठ जाया करती थी। तो कभी घर के अगले आंगन में, कभी पिछले आंगन में वो चिड़ियों से बातें करते थे, उनको उनको देना। मैं उनसे पूछा कि ये आप इतना प्यार करते हैं, ये उसने कहा ये कुदरत है, और कुदरत को प्यार करना ही ईश्वर को प्यार करना है। सो मैं समझता हूँ पक्षियों के रूप में कुदरत कहीं न कहीं आपके चारों ओर, आपके ज़हन में रहती है। इसीलिए मेरी पेंटिंग में जो बर्ड्स हैं, वो उस कुदरत का रूप है जिसमें मैं आगे शिप देखता हूँ। अगर ये पक्षी नहीं हो तो मैं केवल शिप तक नहीं पहुँच पाया, इनकी उड़ान में ही मैं उड़ता हूँ। ये चेतना मेरी चेतना के स्तंभ हैं। पक्षियों से जुड़ना है। Super. So, Rupanjali, I hope you got the answer what sir has mentioned. Manish Nair ji बोल रहे हैं amazing work, good going, God bless you. Those are the compliments. And Rami Kumari ji बोल रहे हैं very nice sir. Neeraj Sharma awesome. Prem Singh बोल रहे हैं happy watching and listening to you dear Ravinder. Thank you so much, sir. स्नेहलता जी पूछ रहे हैं ग्रेट कंग्रेट्स सर when I was in Chandigarh, that time you told your spiritual world you are the one of the best motivational speaker. So Dr. स्नेहलता प्रसाद बोल रहे हैं। स्नेहलता जी ये भी पूछ रहे हैं प्लीज टेल अस व्हेन यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो ये कब हुआ जब आप आर्ट से ये स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा शिफ्ट हुए? सर मेरे प्राइमरी में एक टीचर थे विद्यासागर, और हमारे गांव में एक शिव मंदिर हुआ करता था। इट वाज ऑन द टॉप ऑफ हिल। हम सारे गांव के लोग जब भी कहीं निकलते थे उस मंदिर की टॉप दिखती थी। तो वी यूज्ड टू प्रे, दूर से नमस्कार करना।
And my teacher, he used to get up early and he used to visit that hill. Before taking our class, I was in 4th class. तो हमने पूछना, सर आप सुबह कितने बजे जाते हैं? It was a very steep height, about 4 kilometers height. So he used to rise up at 4 o'clock in the morning, and for 3-4 hours he was on the journey. And when he used to come and sit with us, he was as fresh. So he said, and I'm trying to gain something from our culture, from our religious faith. So वो वैसे विद्यासागर टीचर जो मेरे थे सर, मैं अपने फेथ पे उनका भी आभारी हूँ। मैं, क्योंकि मेरे पास शायद प्रार्थना उनकी तरह नहीं थी, उनकी तरह मेहनत नहीं थी, लेकिन कला में मैं कई बार 6-6 घंटे जब बैठ जाता हूँ, तो मैं लगता है कि ये प्रार्थना ही है। ये उसको आकारों में, रंगों में ढूँढना, ये मैं समझता हूँ कि फेथफुल फेथ को आकार दे सकता है। तो वो कभी-कभी फेथफुलनेस आ जाती है और आकार निकलने शुरू हो जाते हैं। That has been the journey. सर, That आपके करियर में यू टर्न कब आया? व्हेन डिड यू स्टार्टेड कमर्शियली गेनिंग अट्रैक्शन, मतलब आपके आर्ट वर्क को कमर्शियली वैल्यू मिला? commercial art बेटे? Just a minute, sir. या मैं योर करियर यू टर्न कब मिला आपके इसमें? ये सर मैं समझ गया। सर ऐसा है, मैं माइकल एंजेलो की बात यहाँ कहूँगा। माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि आपको अपने आर्ट क्रिटिक से डर नहीं लगता? आपको अपने कामों के बारे में संतुष्टि कैसे होती है? और तो उन्होंने कहा कि अपने कामों का, मेरे कामों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा क्रिटिक्स माइकल एंजेलो खुद है। अगर मेरी रूह उसको साथ दे दे, तो फिर मैं छा जाता हूँ, फिर मुझे परवाह नहीं रहती। मैं अपना ही क्रिटिक हूँ। सर मुझे जो वैल्यू आप कह रहे हैं, जब मुझे किसी दोस्त की, किसी अजनबी की एप्रिसिएशन मिलने लगी एग्ज़िबिशन में, मैंने जब पहला एग्ज़िबिशन लगाया 87 में, तो मेरे रिव्यू प्रोफेसर डॉक्टर भट्टी हैं, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। ही वाज़ माय गाइड एंड ग्रेट करेक्टर हू मोटिवेटेड मी। उन्होंने ट्रिब्यून में एक रिव्यू लिखा और उस रिव्यू को पढ़ के शिमला से कोई, he was a very eminent philosopher, he was staying in a hotel शिमला, जैसे अखबार ट्रिब्यून उनके पास पड़ी, उन्होंने पढ़ा and he cancelled the program and he reached Chandigarh. He came to see my exhibition. I was about 30 years old. It was my second exhibition. And that man embraced me. मुझे गले लगाया उन्होंने। बेटे, मैं शिमला से तुम्हारे एग्जीबिशन के बारे में पढ़ के आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। You have tried to churn those gems which we think but didn't see. So सर, ऐसी एप्रिसिएशन जो है ना, वो मुझे फिर वैल्यू लगी कि मेरी पेंटिंग की वैल्यू है। Then the people they start adoring. एक एप्रिसिएशन का मुझे और बहुत याद है, मैं जरूर शेयर करूंगा। LMN कॉलेज यमुनानगर में मेरा लेक्चर था इमेजेस ऑफ शिवा पे, और मुझे याद है कि उस लेक्चर में सारे सीनियर सिटीजन थे। आई वाज द यंगेस्ट पर्सन, मेरे से सारे बड़ी ऑडियंस थी। सो आई हैव टू स्पीक ऑन शिवा। मुझे एक बहुत ओल्ड जेंटलमैन, ही मस्ट बी सम वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल लाइफ, उन्होंने पूछा, मिस्टर शर्मा, एक क्वेश्चन मैंने बहुतों से पूछा, मुझे आंसर नहीं मिला, मैं आपसे पूछ सकता हूँ?
And he said, when you are too emotional, which color you apply at that time to show your most emotional state? And I looked into my experience and I told him, Sir, when I am very emotional, I can't see any color clearly. They all become dim. So whenever I create some painting in that color that is emotional, he was an old man and he tried to lift me. He came on the stage, he put me in his arms, and still I feel he. So these words and forms have earned me such love, and I value that love. I value it. Super, super experience, sir. रूपांजलि जी बोल रहे हैं स्प्लेंडेड एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट यू एक्सप्लेन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर हर एंड रुपेंद्र जी पूछ रहे हैं लिसनिंग टू शर्मा सर इज़ लाइक अवेकनिंग माई ओन थर्स्ट टू सी इट ऑल बेटर to see his work deeply and more than that all get to see him in person his lifetime something this life term sometime G. So he wants to see him see you in person sometime. So this is from Rupender S. Aulak. Thanks Rupender. That's a awesome compliment for him. So yeah, many fans who are there. And I'm still surprised the way students have created your portraits. So and they're so deep and they look so lively. As if that's a picture which is a digital art of yours. So कैसा लगता है जब स्टूडेंट्स आपका पिक्चर बना के आप ही को गिफ्ट देते हैं? So how is the feeling? सर ऐसा है जब कोई स्टूडेंट मेरा पोर्ट्रेट बनाता है तो मुझे लगता है कि वो मेरे बाहर के एक एक जर्रे जर्रे में उस प्यार को भी देखता है जो मैं उनको करता हूँ और मुझे लगता है क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट ने पोर्ट्रेट बनाए हैं अलग अलग मीडियम्स में बनाए हैं मैं कई बार उनको रिमार्क्स में भी लिखा हूँ कि ये जो तुम बैठ के बनाते हो एक बच्चे ने व्हेन आई रिटायर्ड फ्रॉम द कॉलेज he created a what 5 times more than life size portrait और मैं हैरान था कि he must have spent more than at least 10 days creating that in pencil sketch a student sitting in a studio and making a portrait which has nothing to give him and I told them कि this love which you are investing will make you the embodiment of love so if love makes you do any action. These portraits, they have been part of my studio. Whenever I go and stand around them, I feel that love again. So I think that these are the sources of perennial love, ultimate love, which a teacher and taught they have together. So I'm so grateful for those students, always enjoying their creation, always feeling it like a very spirited source of my inspiration. Sir, can you talk about your academy? You've taken an initiative of teaching and taking it forward, creating those brilliant artists. So ये academy initiative के बारे में कुछ बताएं. Sir, after my retirement, I started an academy, RASA, Ravindra Sharma Art Academy. And this academy is specially to create those teachers who can be ideal mentors. Because art cannot be taught, but you can simply motivate them. And I'm fortunate my daughter and my son-in-law, they are part of my academy. And we have about 20 students, those who have done their JRF from us. A few of them are very ideal teacher. A few, they are doing PhDs. So whenever I am in their class, I try to impart those sentiments which can empower them to be the ideal human being. So I started this and
it is still my, I should say, favorite time whenever I am with my students. और उसमें कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, निफ्ट एंड इट के स्टूडेंट्स हैं. मैं कई बार जब उनको डिजाइन के बारे में लिखता हूँ कि व्हाट इज डिजाइन एंड हाउ द मैन कैन बी एन आइडियल प्रोफेशनल इन डिजाइन, it is not simply what the book says. It is beyond the books. Because unless you are not satisfied with your own design, design means your head, heart, and hand are not harmonious. आप अपने आप में डिजाइन नहीं है. If head is not going with the hand, or if hand is not getting the help of the heart, then the design will not come. So used to tell them, first of all, be perfect in your, I should say, designing your own character. एक मैं और छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनको हम बडिंग पिकासो कहते हैं, फ्रॉम 4 years onward. मैं कहता हूँ कि आई लर्न फ्रॉम देम. उनके पेरेंट्स को कहता हूँ ये मुझे पढ़ाने आते हैं. बिकॉज मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चों की जो ओरिजिनलिटी है, हम पेरेंट्स या टीचर उसके ऊपर अपना इतना काबू कर लेते हैं कि बट ही वांट्स टू से इज नॉट इट एंड नॉट इवन लिसन देम. सो वो बडिंग पिकासो मैंने नाम रखा बिकॉज पिकासो भी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, उनके लिए मैं यूज करता हूँ. सो टू spend some moments looking at their lines, looking at their colors, forms, that is a very important, I should say, activity of after retirement. Super. So when do you know that the student is like, ready now, he can pass out, इसने सीख लिया है? Yes sir. मैं एक स्टूडेंट की आपके साथ इसमें एक शेयर करूं छोटी सी बात. मैं कहीं ये एग्जाम्पल में कभी भी नर्सरी टीचर्स के क्लासरूम में जाऊं तो मैं अक्सर बताता हूं. यस, हाँ, मैं यही बता रहा हूँ सर. एक टीचर ने बच्चों को एलिफेंट का स्केच दिया, सभी बच्चों को. शी हैज ऑलरेडी प्रिंटेड इट. शी गिव ए स्केच ऑफ एलिफेंट कि इसमें रंग भरने हैं, नर्सरी क्लास है, कलर प्रेस करना जोर से, सो दैट द इंप्रेशन शुड कम आउट बोल्ड, लेकिन कलर शुड नॉट गो बियॉन्ड द आउटलाइन. And one child was doing it so efficiently, and he was expecting that teacher will come and will appreciate it. I have done the dark color, I have controlled it. But when the teacher came to him, she gave her a slab. Elephant kabhi hara hota hai. He was putting green color. He said, no, the child, he was not aware about the color. He was about aware two things: that the color should be darker and it should not cross the border. So here we fail to appreciate. And if I want to see any child to be an artist, I want him to play with all his freedom. Let his freedom be the strength of his line, color, form. So that freedom, I think, is an important outcome of my academy that we used to give them. And I think all teacher, मेरे students भी जो teacher हैं, कई बार मुझे एक ने student ने पूछा कि अगर freedom ज़्यादा दें तो सीखेंगे कैसे? तो फिर वो सीखने क्या आएंगे? एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा. सीखना एक इंस्पिरेशन है, वो उसके लिए भी कहते हैं ना, जैसे कुम्हार अपना एक घड़े में एक हाथ आगे अंदर रखता है तो एक बाहर रखता है कि टूटे भी नहीं. सो यू कैन गाइड हिम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फ्रीडम शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड एट योर गाइडेंस. दैट शुड बी बैलेंस्ड. Then your child is going to gain something through you and the art he do in your company. Well said. That's Well said. yes. तो रेनू हुडा जी बोल रहे हैं great words, and we have नीरज शर्मा, always learn something new from you sir. You are encyclopedia of thoughts.
अजय So Suraj beats Thakur, Hello Musa, and Sona Beniwal, my favorite artist, Ravinder Sharma ji. His artworks are divine and speechless. So थैंक यू सो these are the मच. compliments which are coming in. Sir, so आपसे ये question है कि what's your dream project? What's coming next? Anything Yes, which you want to work on, sir. achieve? May I have on my two things. One, I'm coming out with a book recently. जिसका है Words and Forms of Faith. In that book, there will be my paintings and some poem or words which I used to write always, which are very, I should say, an inspiration. This is the immediate that I'm on that work, doing almost done it, and now it's with the publisher that he has to do it. So, and I do feel that when you see a form and that form give you a word, sometime a song, मैं कई बार जब गीत सुन रहा होता हूँ किसी फिल्म में या किसी टीवी पे या रेडियो में, तो कई बार वो जो सॉन्ग है वो मेरी लाइन का सहारा बन जाता है. सो मैंने वो अनुभव कि किस तरह से सॉन्ग और लाइन मुझे अच्छी लगी. मैं एक दिन गाना सुन रहा था बच्चों को, मैं कई बार एस्थेटिक क्लास लिया करता था बच्चों को. शो मेरे स्टूडेंट जो होंगे वो देखते होंगे, मैं उनको एक कोई बहुत फेवरेट गाना हम कई बार स्टूडियो में लगा देते, कॉलेज में मैंने लगा देना कि दे शुड लिसन इट, ताकि गाना सुन के उनको एस्थेटिक की वो कहना चाहिए एक अवस्था दे दे. क्योंकि परसेप्शन जो है ना सर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना. मैन आदमी अपनी सोच से, अपनी परसेप्शन से बहुत ऊंचा भी हो जाता है और नीचे भी हो जाता है. नेगेटिव परसेप्शन है तो आपके चाहे चाहे अमृत बह रहा हो, आपको वो कड़वा लगता है. सो वो गाना आ रहा था बच्चों के सामने, मिट न सकेगा फसाना हमारी चाहतों का. चाहते हैं अगर शाश्वत है, मैं बच्चों को कहता हूँ, तो मैं कई बार, अब ऐसे कई बार गीत आते हैं तो वो उनका मीनिंग ऐसे लगता है हमारे लिए गाया, हमारी उस चाहत के लिए गाया हुआ है जो मैं रंगों और रेखाओं द्वारा पेपर से साझा कर रहा हूँ. सो वो मेरी प्रोजेक्ट बुक है सर, एंड माय सन इन लॉ इज लुकिंग आफ्टर इट, एंड आई होप इट विल बी माय फेवरेट एफर्ट. Super, sir. All the best for that. अरे थैंक यू. सर पेंटिंग के लिए उसका टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट इन वन वर्ड और वन सेंटेंस? सो योर टफेस्ट टाइटल जिसमें आपको बहुत टाइम लगा उसको डिसाइड करने के लिए कि आई विल नेम दिस दिस पेंटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सर ऐसा है, ये जो टाइटल है पेंटिंग का, कई बार शब्द जब आपके चित्र में उभर आते हैं, आप एक चित्र बना रहे हैं, एक शब्द आपका उभर आता है और उभर नहीं आता, वो एक अनहद नाद की तरह उस चित्र के साथ साथ आपके भीतर तरंगे पैदा कर देता है. मुझे याद है मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में था, तो बच्चे जब किसी एग्जीबिशन में पेंटिंग देते थे तो वो अपनी पेंटिंग उठा के मेरे पास ले आते थे, सर कोई टाइटल सजेस्ट करें. तो मैं उनको गले लगाता था कि मेरी टाइटल लिखने की जो हम्बल एबिलिटी है उसकी वजह से ये पेंटिंग इतनी भारी तुम्हें यहाँ लेके पहुंचना पड़ा. सो वो तारीफ है, एप्रिसिएशन है. एप्रिसिएशन जब किसी चीज की हद से ऊपर उठ जाती है तो शब्द मिल जाता है, और वो शब्द कई बार किसी कला प्रेमी की एप्रिसिएशन को जगा देता है, जैसे जाग लगाते हैं दही बनाने के लिए. लेकिन कई बार अधूरा छोड़ना, बिना टाइटल के छोड़ देना, क्योंकि
हमारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में एक ध्वनि थ्योरी है। हमारे एक बहुत बड़े एस्थेटिशियन हुए हैं जिन्होंने ध्वनि थ्योरी, आनंदवर्धन, वो कहा करते थे कि कलाकृति में या उसके टाइटल में कुछ ऐसा भी छोड़ा जाए जो सुजेस्टिव हो, उसकी पूर्ण सेंस कलाकार के काम की बजाय दर्शक अपने आप सोचे। सो आजकल कई आर्टिस्ट अनटाइटल लिख देते हैं, वो भी मैं समझता हूँ एक ज़रूरी है, क्योंकि वो दर्शक की चेतना को पूरी फ्रीडम दे देते हैं कि वो अपने आप उसको अनलॉक करे। लेकिन कई बार आर्टिस्ट विवश हो जाता है उस शब्द जो उसको उन पेंटिंग ने दे दिया, फिर वो रह नहीं पाता, तो वो फिर लिखना ही पड़ता है उसे, चाहे वो कविता लिख दे या एक शब्द लिख दे। So we have some more comments. युवराज बोल रहे हैं वेरी ग्रेट वर्ड सर. स्नेहा जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट टूल. इज देयर समथिंग यू कांट लिव विदाउट इन योर स्टूडियो. सो सर मेरे फेवरेट आर्टिस्ट एक तो माइकल एंजेलो, एक वैन गॉग थे। आर्टिस्ट टूल. टूल, इनके आर्टिस्ट के जो मैं टूल समझता हूँ, इन दोनों आर्टिस्टों को मैंने जब काम करते देखा तो मुझे लगा कि टूल से ज्यादा भीतर का टूल, चेतना, परसेप्शन, परसेप्शन करते करते 3 लेवल बन जाते हैं सर। टूल्स उन 3 लेवल्स की असिस्ट करता है। मेरे हाथ में गत्ता है, एक व्हाइट पेपर पड़ा हुआ है। मुझे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब आप रंग फेंकते हो और उसको घिसते हो, तो फॉर्म आपके ज़हन में होती है या बाद में उभरती है? मैं उनको बोलता हूँ कि परसेप्शन की 3 स्टेजेस हैं, एक सेंसुअस है, एक इंटेलेक्चुअल है और एक वोलिशनल है, जिसको इंट्यूटिव भी कहते हैं, लेकिन वोलिशनल उससे भी ऊपर है। जब मैं गत्ते पे कागज का टुकड़ा रगड़ता हूँ तो सेंसुअस है, आंखें देख रही हैं। फिर मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगा, मुझे यहाँ को भी मोड़ना पड़ेगा, तो वो इंटेलेक्चुअल है कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस उसमें याद आ जाता है। और फिर देखते-देखते मुझे उसमें से एक शिव की इमेज दिखाई देती है। फिर तो मैं दोनों भूल जाता हूँ और फिर उस इमेज की तलाश में उसको फाइनल टचेस दे देता हूँ, एंड उस वक़्त ऑल लॉज़ मेल्ट इंटो दैट। सो वो 3 स्टेजेस हर एक आर्टिस्ट के साथ आती हैं, हर एक म्यूज़िशियन के साथ आती हैं कि पहले वो कुछ नियमावली को अपनाता है, लेकिन जब मस्ती में आ जाता है तो उँगली कहाँ पड़ रही है, वो फिर टूल की बजाय वो भीतर की मस्ती ही है जो वहाँ देती है। थैंक यू सर. वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. गुरमीत जी बोल रहे हैं वेरी मच ट्रू. एंड युवराज बोल रहे हैं वेरी वेरी नाइस वर्ड्स एंड वेरी गुड टीचर. वेरी नाइस टीचर. दोज आर द कॉम्प्लीमेंट्स. सिरिशा बोल रही हैं वेरी पोएटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. प्रमोद जी बोल रहे हैं नमस्कार वेरी नाइस पर्सन एंड एन आर्टिस्ट. अजय समीर जी बोल रहे हैं ग्रेट मोटिवेशनल कॉन्वर्जेशन. हाँ सर। And Rof is saying, Rof Qureshi is saying beautiful statement. Tutu Patnaik ji join हुए हैं. He's saying good evening Ravinder ji. It's been always pleasure to hear your meaningful words. Thank you. Yuvraj again is saying very nice words sir. You're a legend. So great. सर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनको चांस नहीं मिला वो आपके स्टूडेंट्स हैं. दे couldn't learn directly from you. And lot of upcoming artists are there. A lot of people who have evolved during pandemic or who've started art recently after various careers they have opted. Upcoming artists के लिए जो आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए आपका सजेशन. So this is my final question for you. सर मैं उनके लिए ही संदेश दूंगा कि कला से बढ़कर कोई भक्ति नहीं, और अगर वो अपनी कला में दक्ष हैं, दक्ष का मतलब ही नहीं कि एक्सपर्ट होना है, कला नूर है मगर गुरूर से दूर रहे।
बस वो फिर ये नूर है, और ये नूर बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही गुरूर का अंधेरा साथ में जुड़ जाता है, तो ये नूर फिर धूमिल पड़ जाता है। सो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि उनके पास सबसे बड़ा सोर्स है नूर का, जो उनकी रूह को है वो ताज़गी देगा, जिसके लिए दुनिया तरस रही है आज। देश के या दुनिया के हालात कितने भी बुरे हैं, फिर भी कला, चाहे वो शब्दों से, पोएट्री से, कला से उनको एक नया जीवन, नई सोच दे रही है। ये नूर इन कलाकारों के पास है और वो दुनिया को बहुत कुछ देने वाले हैं। बस गुरूर से बच जाएँ, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये अगर साथ जुड़ रहे हैं, मैं कई बार मैं उनके साथ साझा कर रहा हूँ कि रात को 12-1 बजे मैं जब स्टूडियो से नीचे आता हूँ, तो मैं सोने लगता हूँ, तो मुझे याद लगता है कि मैंने रंग बंद नहीं किए। वापस चले जाता हूँ ऊपर स्टूडियो में, और पेंटिंग के कोई किनारा बोलता कि यहाँ मुझे आज टच कर दो, और सुबह हो जाती है। और मैं उस सुबह में फिर लेट के कई बार रात को पूरे ग्राउंड पे नतमस्त होके उस कैनवस को प्रणाम करता हूँ कि इस टच ने मुझे 4 घंटे वो दिए जो मैं सोचा नहीं था। वो कलाकार के पास ऐसे कई अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उनको यूज़ करें, उन अनुभवों को संजोएँ। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस मैनकाइंड, दे आर द रेनबोज़ ऑन द स्काई ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, दे आर द वेरिटीज़। मेरी यही उनको, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ रविशंकर जी। Thank you, sir. आपके नाम में मेरा नाम भी है और मेरे इष्ट देव का नाम भी है। मैं आपको देख-देख के भी बहुत कुछ अच्छा बोल पाया हूँ। मैंने कहा कि कोई आदमी आपके सामने जिसकी नज़रों से आपको ताकत मिले, वो मुझे आपसे मिली है, इसीलिए मैं आपका आभार व्यक्त किए बगैर भी इस इंटरव्यू को खत्म नहीं कर सकता। Thank you, sir. थैंक यू सो Thanks a lot for taking time out and sharing your experience. I still envy you. बहुत सारे आपके स्टूडेंट फैंस हैं जो आपके प्रोफाइल पिक्चर में देखता और रहता हूँ, तो उसे अभी भी एनवी करता हूँ. बट प्लीज़ कंटिन्यू दैट एंड yeah, keep creating more artists, more teachers who can motivate and create some colors in this earth. बहुत ज़रूरी है. And I would like to thank Sneha Arts for giving this opportunity where I could meet people, legends, as Yuvraj has mentioned, through this particular platform. And thank you all the lovely audience who are watching this and shared those questions and compliments for sir. And all the best, sir. All the best for your book. I'm sure that will also create remarkable history. Thank you, sir. Thanks a मैं lot for joining आपका in. बहुत आभारी हूँ सर। मैं क्यों, बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट है मेरे ये दोस्त, इनकी कला दुनिया को वो रंग दे रही है जो रूह के होते हैं, और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपनी तहे दिल से उनका आभारी हूँ, आपका भी। और आज इस गोष्ठी में जो मुझे मौका मिला है उन सब के साथ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और शब्द स्नेहा जी, जिन्होंने मुझे जोड़ा है आपसे, नाम ही उनका स्नेहा जी है। तो सचमुच मैं उनका काम देखता हूँ, वो भी शिव की उपासक हैं। उनकी स्कल्पचर जब वो शिव पे करती हैं, तो वो जो शक्ति उसमें दिखती है, वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सो मैं स्नेहा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जो आने वाले टाइम में मेरे जैसे कई लोगों को मौके देंगी कि हम अपनी दिल की बात आत्मा से कर सकें। और मैं उनका आभारी हूँ, और प्रार्थना करूँगा कि वो आगे भी स्नेहा आर्ट्स और आप के साथ मिलके दुनिया को एक ऐसी सोच बख्शे, जो आने वाले भविष्य को नए रंग दे। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Thank you. And I would love to read this particular comment. Rupinder S. Aluka is saying, I am bowing, for you both. Actually, this should be for Ravinder sir through my iPhone. So, he is actually giving a ovation for you through iPhone while watching this. So, thank you. Thank you, Rupinder ji. Thanks a lot. So, with this, we would like to, take leave. Thank you, sir. Thanks again for joining in. Thank you so Have a much. great Thank you so evening. much. Thank you.